حضرت ال کی ولادت کا واقعہ ایک بے مثال اور منفرد واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں ایک روشن باب کے طور پر درج ہے۔ یہ واقعہ 13 رجب الامرجب کو پیش آیا جب حضرت ال خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ شرف کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ال کو مولون کعبہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریر میں ہم حضرت ال کی ولادت، ان کی شخصیت اور ان کی عظیم خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ خانہ کعبہ میں ولادت حضرت ال کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد ایک نہایت محترم اور نیک دل خاتون تھیں۔ وہ خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں اور مکہ مکرمہ کی ایک معزز شخصیت تھیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو طالب نہ صرف قریش کے سردار تھے بلکہ رسول اللہ کے چچا اور محافظ بھی تھے۔ 13 رجب کے دن حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے گئے۔ اسی دوران ان پر ولادت کے آثار ظاہر ہوئے۔ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی دیوار معجزانہ طور پر شگافتہ ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں۔ وہاں حضرت ال کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ حضرت ال کا بچپن رسول اللہ کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت ال بچپن ہی سے رسول اللہ کے قریب رہے اور ان کی تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ نے نہ صرف رسول اللہ کی شخصیت سے سیکھا بلکہ ان کے مشن میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت ال کو بہت کم عمری میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ پہلے مرد تھے جنہوں نے رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ حضرت ال کی شخصیت کی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ حضرت ال کی شجاعت اور بہادری تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر سمیت تمام اہم معرکوں میں حضرت ال نے شجاعت اور جرأت کی مثال قائم کی۔ جنگ خیبر میں آپ کے ہاتھوں قلعہ خیبر کا دروازہ فتح ہونا ایک یادگار واقعہ ہے۔ علمی خدمات حضرت ال کو علم و حکمت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اپنے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی خطبات، اقوال اور فیصلے اسلامی تاریخ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا خطبہ نہج البلاغہ ایک شاہکار ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل کتاب۔ حضرت ال کا عدل و انصاف۔ حضرت ال نے اپنی خلافت کے دوران عدل و انصاف کی بے مثالیں قائم کیں۔ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور کبھی کسی طاقتور کے دباؤ میں نہیں آئے۔ آپ کے فیصلے عدل و انصاف کے اعلیٰ اصولوں پر مبنی ہوتے تھے۔ حضرت ال کی شہادت، حضرت ال کی زندگی کا اختتام بھی ایک عظیم قربانی پر ہوا۔ 19 رمضان المبارک کو کوفہ کی مسجد میں آپ پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 21 رمضان کو آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک المیہ ہے لیکن یہ قربانی انسانیت کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ نتیجہ حضرت ال کی ولادت سے لے کر شہادت تک آپ کی زندگی اسلام کی خدمت، علم و حکمت، شجاعت اور عدل و انصاف کا نمونہ رہی۔ آپ کی شخصیت رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت ال کی خانہ کعبہ میں ولادت ایک منفرد واقعہ ہے جو ان کی عظمت اور مقام کو واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عظمت اور بلندی کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور حضرت ال کا کردار اس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم اور منفرد واقعہ ہے۔ آپ کی ولادت 13 رجب الامرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کے فضائل اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں اس عظیم واقعے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت ال کا خاندان اور نسب۔ حضرت علی علیہ السلام کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا نسب رسول اکرم کے ساتھ ملتا ہے اور آپ کو رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی والدہ ایک نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں
जिन्हों ने रसूल अकरम की परवरिश में भी अहम किरदार अदा किया। खाना कबा में विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत एक मौजिज़ा है, क्योंकि अब की विलादत खाना कबा में हुई, जो अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर है। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम में मुनफ़रिद है, क्योंकि ना इससे पहले और ना उसके बाद किसी और की विलादत इस मुक़द्दस मकाम पर हुई। रवायात के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद खाना कबा के करीब थीं जब उन्हें विलादत के आसार महसूस हुए। अल्लाह ताला के हुक्म से खाना कबा की दीवार शिक हुई और वो अंदर दाखिल हो गईं। 3 दिन तक वो वहाँ रहीं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम और अज़मत अता की। हज़रत अल का बचपन। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बचपन रसूल अल्लाह के ज़ेर साया गुज़रा। रसूल अकरम ने अब की परवरिश और तरबियत में ख़ुसूसी दिलचस्पी ली। बचपन ही से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत में इल्म, हिकमत, शुजाअत और तक़ू के आसार नुमायां थे। आपको रसूल अल्लाह के साथ करीबी ताल्लुक़ का शर्फ हासिल था और अपने बहुत से अहम मौक़े पर रसूल अल्लाह का साथ दिया। इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द होने का शर्फ हासिल है। जब रसूल अकरम ने ऐलान नबूवत किया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले ईमान लाए। आपकी उम्र इस वक्त सिर्फ 10 साल थी, लेकिन आपकी बसीरत और ईमान की पुख्तगी ने आपको इस मकाम पर फाइज किया। हज़रत अल की शुजाअत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी के बेशुमार वाक़यात इस्लामी तारीख़ में मौजूद हैं। ग़ज़वा बदर, अहद, खंदक और खैबर में अपने अपनी बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहिरा किया। ग़ज़वा खैबर में अपने क़ला खैबर का दरवाज़ा उखाड़कर दुश्मनों को शिकस्त दी, जिसे तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। हज़रत अल के इल्मी कमालात। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बाब अल इल्म कहा जाता है, क्योंकि अब इल्म व हिकमत के ख़ज़ाने थे। आपके खुतबात, अक़वाल और फ़ैसले आज भी रहनुमाई का ज़रिया है। अपने इस्लामी कानून, फ़िक़्ह और अदलो इंसाफ के उसूलों की बुनियाद रखी। हज़रत अल का मकाम और फ़ज़ाइल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कुरान और अहादीस में बुलंद मकाम अता किया गया है। रसूल अकरम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इल्मी अज़मत को ज़ाहिर करती है। आपको रसूल अकरम ने अपना भाई करार दिया और फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। हज़रत अल की विलायत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को विलायत का मकाम अता किया गया, जो उनकी रूहानी और दीनी क़ियादत को ज़ाहिर करता है। गदीर ख़म के मौके पर रसूल अकरम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ, इसका अली मौला है। ये ऐलान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की क़ियादत और खिलाफत की तस्दीक करता है। हज़रत अल की विलादत का पैगाम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या हमें अल्लाह ताला की कुदरत और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे की अज़मत का एहसास दिलाता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि इल्म, शुजाअत और तक़ू के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू मुसलमानों के लिए मशअल रहा। उनकी विलादत का दिन हमें उनके फ़ज़ाइल और क़ुरबानियों को याद करने का मौका फ़राहम करता है। हज़रत अल की विलादत का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अहम और बाबरकत वाक़या है। ये वाक़या 13 रजब अलमरजब को पेश आया, जो हज़रत अल की विलादत का दिन है। हज़रत अल की विलादत खाना कबा में हुई, जो दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम और अल्लाह का घर है। ये वाक़या न सिर्फ हज़रत अल की अज़मत को ज़ाहिर करता है, बल्कि उनकी शख्सियत को दीगर इंसानों से मुमताज़ करता। हज़रत अल का ख़ानदान और हसब नसब। हज़रत अल का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बन्नू हाशिम से था। इनके वालिद हज़रत अबू तालिब थे, जो नबी करीम के चचा और उनका बड़े कफ़ील थे। इनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद थीं, जो एक निहायत नेक और बाकिरदार ख़ातून थीं। हज़रत अल के वालिदैन ने हमेशा नबी करीम की मदद की और इस्लाम की खिदमत में पेश रहे। खाना कबा में विलादत। हज़रत अल की विलादत खाना कबा में हुई,
जो दुनिया में किसी भी इंसान के लिए एक मुनफरिद एजाज है। तारीख के मुताबिक जब हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद को विलादत का वक्त करीब आया तो वो खाना कबा के पास गईं और अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी मदद की जाए। अल्लाह के हुक्म से खाना कबा की दीवार शिक हुई और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद अंदर दाखिल हो गईं। वहाँ 3 दिन क़याम के बाद हज़रत अल की विलादत हुई। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि हज़रत अल को अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी फ़जीलत अता की। खाना कबा में विलादत का ये एज़ाज़ दुनिया के किसी और शख्स को नहीं मिला और ये हज़रत अल की अज़मत और उनके मकाम को ज़ाहिर करता है। हज़रत अल की शख्सियत इल्म, शुजाअत, अदल और तक़ू का मुजस्समा थी। इब्ने नबी करीम के ज़ेर साया परवरिश पाई और उनके इल्म व हिकमत से फैज़ याब हुए। हज़रत अल बचपन ही से नबी करीम के करीब रहे और इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में ही दीन इस्लाम कबूल का। इस्लाम की खिदमत हज़रत अल ने इस्लाम की खिदमत में हमेशा अपना किरदार अदा किया। जंग बदर, जंग अहद, जंग खंदक और दीगर ग़ज़वात में इब्ने शुजाअत की बेमिसाल दास्तानें रक़म की। इब्की तलवार ज़ुल्फ़िकार इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक अहम हथियार साबित। हज़रत अल की खिलाफत हज़रत अल को चौथे खलीफा राशिद के तौर पर मुंतखब किया गया। इब्की खिलाफत का दौर मुश्किलात और फितनों से भरा हुआ था, लेकिन इब्ने हमेशा अदलो इंसाफ का दामन थामे रखा। इब्ने इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई। हज़रत अल की शहादत हज़रत अल को 19 रमज़ान अल मुबारक को कूफा की मस्जिद में नमाज के दौरान ज़ख्मी किया गया और 21 रमज़ान को इब शहीद हो गए। इब की शहादत इस्लाम की तारीख़ का एक अलमनाक वाक़या है, लेकिन इब की क़ुरबानी और ख़िदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नतीजा हज़रत अल की विलादत खाना कबा में एक ऐसा वाक़या है जो उनकी अज़मत और अल्लाह के नज़दीक उनके बुलंद मकाम को ज़ाहिर करता है। इब की ज़िंदगी इल्म, तक़ू, शुजाअत और अदल की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत अल की शख्सियत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशअल्ला है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत 13 रजब अल-रजब 30 आम अल-फ़िल को मक्का मुकर्रमा में खाना कबा के अंदर हुई। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में मुनफरिद और बेमिसाल है, क्योंकि अब से पहले और बाद कोई भी कबा के मुक़द्दस मकाम में पैदा नहीं हुआ। हज़रत अल की विलादत का वाक़या एक बेमिसाल और मुनफरिद वाक़या है जो तारीख़ इस्लाम में एक रोशन बाब के तौर पर दर्ज है। ये वाक़या 13 रजब अल-रजब को पेश आया।